Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry grade 8 lecture number 66. Today we will discuss the key points plus exercise of unit number 2 page number 59, 60 and 61. unit number 2 जो है उसके टॉपिक वाइज हम उसको फिनिश कर चुके हैं। अब उसके की पॉइंट्स और एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेज 59, 60 और 61 पे। क्लियर? Key points, page number 59. Greek proposed that matter is composed of small particles called atoms. For the first time किसने किया था? Greeks ने किया था कि matter is composed of small particles and these particles are called atoms. ये key point जो है ये objective portion को के लिए ज़रूरी है कि इससे आप ऑब्जेक्टिव बना भी सकते हैं और ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स की की पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। द इनडिविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम बिकॉज एटम एटमोस से निकला है और इसका मतलब है इनडिविजिबल, कांट बी डिवाइडेड एनी मोर। Electrons, protons and neutrons are the fundamental subatomic particles of atom. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Rutherford's model of atom consists of a positively charged nucleus. This model states that electron revolves around the nucleus like the planets around the sun. Most of the space occupied by an atom is empty और इसी वजह से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। According to Bohr's atomic theory, the electron revolves around the nucleus in certain fixed circular orbit called shell or energy levels. इसको shell भी कहते हैं, energy level भी कहते हैं। The arrangement of electrons around the nucleus in orbits or shell is called the electronic configuration. Electrons are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path called shell or orbit. Each shell has a fixed energy. These orbits are also called energy levels. Orbits को क्या कहते हैं? Energy levels भी कहते हैं। Clear? They are also called energy levels. Shell or energy levels are named alphabetically as K, L, M, N and so on. अब ये कैसे क्यों शुरू है? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये कर्नल से निकला है। कर्नल मीन्स सेंटर और उसी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है K और फिर बाकी जो है अल्फ़ाबेटिकली इस तरह K के बाद फिर L, M, N, N इसी तरह इस फर्स्ट शेल इज कॉल्ड K shell. The maximum number of electrons in a particular shell is given by the फार्मूला 2n²। 2n² बोहर ने फार्मूला ये फाइंड किया था कि 2n² से आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है तो 2n², n इज़ द नंबर ऑफ शेल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1² 1 2 multiplied by 1 is equal to 1 2. It means 2 electrons are present in first shell. अब second shell की बात करें तो 2 multiplied by 2 square, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 electron are present in second shell. इसी फार्मूले से आप डिफरेंट शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हो। Energy levels are shells further split into sub-energy levels or subshells. The subshells are designated by a sharp S for sharp, that is first one, P for principal and D for diffuse and F for fundamental. Yes, 4 subshells है। कौन कौन से? S, P, D and F. Isotopes are atoms of the same element having different number of neutrons. आप इसकी दूसरी डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं। Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Clear? No, isotopes are used in chemical, medical and agriculture researches. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप पढ़ा कि इसको हम केमिकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर रिसर्चेस के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड आइसोबार। अपने साथ नोट करें, आपके बुक में नहीं है। आइसोबार, isobar same mass, iso means same, bar that is mass,
चार्ज जिसको कहते हैं ना, तो आइसोबार are the atoms of different element having same mass number but different atomic number. आइसोटोप का बिल्कुल उलट है. Atoms of different element having same mass number but different atomic number. For example, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14. आप दोनों देख ले, दोनों का मास नंबर 14 है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. क्लियर? नो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल इज़ 2 इन स्क्वायर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और थर्ड एनर्जी लेवल में 18 है. बी नंबर ऑप्शन सही है, इसको टिक करें, शाबाश. 2 एन स्क्वायर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. थर्ड में आप 2 एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 लगा दी, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं थर्ड एनर्जी लेवल में? दैट इज़ 18. मोस्ट ऑफ एन एटम इज़ mass of an atom is mostly due to its nucleus. क्या आता है? न्यूक्लियस आता है. कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए नंबर. कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर. इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर. मोस्ट ऑफ एन एटम, मोस्ट मास ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस. क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दैट इज़ हैवीएस्ट पार्टिकल, जिसकी वजह से इसका मास है. तो मास ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस. क्लियर? इफ रदरफोर्ड हैज़ used neutron instead of alpha particle in the scattering experiment, the neutron would be, तो आपको पता है न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, तो नॉट डिप्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज. इस पे चार्ज नहीं है. ए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट डज नॉट क्या है? रेडिएट एनर्जी. सी नंबर ऑप्शन. इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन. विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई इज फॉल्स. ये दो आइसोटोप्स से अगर आप देख ले, दे आर आइसोटोप्स. क्लियर? दे आर द सेम एलिमेंट. क्लियर? दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? क्योंकि आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. डी नंबर. कौन सा नंबर? डी नंबर. नाउ द नेक्स्ट वन, the neutron particles has a mass equal to that of electron. गलत. has a mass approximately equal to that of a proton. बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि उसका और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द सेम मास नंबर. तो क्या है ये? फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर. कौन सा वाला? ए नंबर. आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Clear? Now, which one is the lightest? An alpha particles, a hydrogen atom, an electron, a proton. इसमें सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन है. कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी. The nucleus of an atom has all of the following characteristics except that is positively charged. Clear? Is very dense. Clear? Contains nearly all the atom's mass. Clear? Contain nearly all the atom's volume. गलत. एटम वॉल्यूम तो सब पे डिपेंड करता है, शेल्स और न्यूक्लियस दोनों पे डिपेंड करता है. तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये फॉल्स है, ये गलत है. कौन सा नंबर ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन. शेल हैज सब शेल्स. एल शेल हैज सब शेल. एल इज़ द सेकंड शेल, तो इसमें कितने सब शेल्स होने चाहिए? फर्स्ट शेल हैज़ 1 सब शेल, 2 शेल हैज़ सेकंड शेल हैज़ 2 सब शेल्स. तो दैट इज़ एस एंड पी. कौन सा नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है. कौन सा नंबर? बी नंबर. एल शेल हैज़ 2 सब शेल्स एंड दीज आर एस एंड पी.
दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिट 2। इसके बाद इंशाल्लाह हम रिटन वर्क यूनिट 2 का शुरू करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिटन वर्क ऑफ यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम।